Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. We'll begin the session with a question that was asked to me in due course. I was asked, Prabhuji, if gross materialists study Bhagavad Gita, then how will Bhagavad Gita help them? अगर कोई कट्टर भौतिकवादी भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो उनको भगवत गीता से क्या लाभ होगा? So first of all, we must understand who are gross materialists and what is in store for them. So the gross materialists, जो कट्टर भौतिकवादी है, उनका क्या लक्षण होता है? वो in the long run, वो जीवन का रेस भागते भागते they lose self mastery. मतलब वो स्वयं अनुशासन नहीं कर पाते. और दूसरा वो they also lose their moral compass. मतलब right और wrong, they are not able to differentiate what is right and wrong. सही और गलत क्या है वो तय नहीं कर पाते. And in the long run, they also lose respect for ecology and people around them. तो कुछ समय के बाद वो निसर्ग और आसपास के लोग, बंधु, इन सब के लिए वो जो आदर है वो उसको भी खो देते हैं. तो इसका परिणाम क्या होता है? पहले जब वो दे लूज सेल्फ मास्टरी, व्हेन दे लूज सेल्फ मास्टरी, स्वयं अनुशासन जब खो बैठते हैं तो दे विल सफर साइकोलॉजिकली, मतलब मानसिक रूप से वो सफरिंग पाते हैं. तो जैसे कि नरक में जाना और मानसिक आतंक में रहना, mental disturbances, suffering just like hell. So they go through this. Then B, that is when they lose moral compass, what happens? जब जो नैतिक दृष्टिकोण को खो देते हैं तब क्या होता है? तो उनका रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रेन हो जाता है. क्योंकि वो सही गलत का मतलब विभाजन नहीं कर पाते. They are not able to differentiate right and wrong. They end up doing wrong things and doing wrong things to people. So they have strained relationships. मतलब उनका पर्सनल रिलेशनशिप्स बिगड़ जाता है. और तीसरा, when they lose respect for ecology, तो क्या होता है? Ecological disasters are created. उनके वजह से आसपास में आतंक मच जाता है. तो this is how gross materialists go through in their lives. So what does Bhagavad Gita do for them? तो उनके लिए भगवद गीता क्या कर सकता है? अगर वो नित्य अध्ययन करेंगे गुरु के आशीर्वाद से या भगवान की कृपा से, अगर वो कर पाते हैं तो धीरे धीरे they will start, the Bhagavad Gita will give them tools and techniques to start gaining self mastery. स्वयं अनुशासन वो कर पाएंगे. They will be able to control themselves. Then they will start regaining their moral compass. सही और गलत का
वो विश्लेषण कर पाएंगे, विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड दे विल डेवलप रेवरेंस टू नेचर एंड पीपल अराउंड देम। तो लोगों के बाती, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बाती वो रेस्पेक्ट गेन करना स्टार्ट करेंगे, तो वो उन सब के लिए वो काम करना स्टार्ट करेंगे। सो भगवत गीता, व्हाट डज भगवत गीता डू फॉर एनीबॉडी, materialist or somebody seeking spiritually, or somebody who's simply reading because of inquisitiveness? There are changes that happens in a person. बदलाव आता है। पहला चेंज है चेंज ऑफ मेंटालिटी, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। देन चेंज ऑफ असेसमेंट्स, सही गलत लोगों को परखना, ये सब उनको आसानी से आ जाएगा। फिर इट चेंजेस लाइफ फॉर द बेटर, तो अल्टीमेटली उनका जीवन प्रज्वल हो जाता है। फ्रॉम डार्कनेस दे गो टुवर्ड्स लाइट। दिस इज द advantage of reading Bhagavad Gita. This is the prayojana of reading Bhagavad Gita. So we will move on, and okay, I'll deal with one more question. So somebody asked me, Prabhuji, can you throw more light on why Kurukshetra was chosen as the battlefield? कुरुक्षेत्र को ही रणभूमि क्यों चुना गया और धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? Already I have dealt with this in my previous sessions. So you please go back and listen to the previous session, the very first or second session, I think. But some more things I can add. Kurukshetra is also called as Deva Yagnam. मतलब वो जगह है जिस जगह पे देवता भी, even demigods come and do yagna. This is because Kuru, who was the ancestor of Kauravas and Pandavas, he had done सीवियर ऑस्टेरिटीज, घोर तपस्या उन्होंने किया था, और डेमिगॉड्स यानी कि देवताओं से वो वर मांग रहे थे कि जो भी यहाँ पे यज्ञ करते हैं वो अमर हो जाए। लेकिन देवताओं ने नकार दिया, उन्होंने बोला कोई अमर नहीं हो सकता, सबको एक ना एक दिन मरण तो पाना ही है, एवरीबडी हैज टू डाई वन डे, वी कैन नॉट ग्रांट यू दैट बून। सो देन ही सेड, whoever performs yajna in this place should be able to go back to at least heavenly planets, if not back to Godhead, if not back to Goloka, at least they should be able to go to heavenly planets. And this was granted by the demigods. सारे देवताओं ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि उनके वंशज या कोई भी आके यहाँ पे एक कोई भी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं भगवान के निर्देश के अनुसार, तो वो भगवत प्राप्ति हो सकता है, या कम से कम वो स्वर्ग अवरोहण हो सकता है। सो दे कैन गो टू स्वर्ग और दे कैन ऑल्सो गो बैक टू गॉडेड। सो व्हाट वाज कुरुक्षेत्र वॉर? कुरुक्षेत्र रणभूमि युद्ध क्या था? भगवान के मार्गदर्शन से ये युद्ध हुआ। सो जो भी इस युद्ध में मारे गए या तो वो स्वर्ग चले गए, या कुछ लोग भगवत धाम भी वापस चले गए। सो पीपल हु डाइड इन दिस बैटलफील्ड, many of them went to heaven, and some of them also went back home, back to Godhead at the end of their life. So, and here Parshurama also performed severe austerities. जब 21 बार 21 times he annihilated Kshatriyas, and he came here and did tapasya to do prayaschitta for atonement. He came and did here, and that is the significance of this place. So it favors the pious and it influences the impious. जो सत्स्वरूप रूप लोग होते हैं उनको आशीर्वाद देता है, और जो असत रूप स्वरूप जन होते हैं तो उनके ऊपर प्रभाव होता है। इसलिए पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था? ही वॉज वेरी एंशियस, क्या हुआ वो पूछ रहा था, क्योंकि वो जानता था, because he knew that Kurukshetra will influence his impious sons also, and of course it will have great blessings on the pious Pandavas. That's why he was very anxious. So what we are learning from this is Dhritarashtra's attitude, Dhritarashtra का जो बर्ताव है उससे हम क्या सीख रहे हैं? Attachment makes even the powerful राजा powerless, क्योंकि वो क्या बोल रहा था? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब हम किसी से बध जाते हैं तो हम शक्तिशाली होते हुए भी शक्तिहीन हो जाते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र राजा था, फिर भी उसका पुत्र का व्यामोह इतना अधिक था कि वो जानबूझ के
गलती जो हो रहा है उसको होने दिया. So we will move on. We will start with today's shloka number 29. Shloka number 29 is called as the amazing verse, the amazing soul, the amazing shloka, अद्भुत श्लोका. क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? Let's read. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्. So you see, the shloka is full of ascharya, 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 adbhut, adbhut, adbhut. So the translation for this is, some look on the soul as amazing. कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मान के देखते हैं. Some describe him as amazing. कुछ लोग आत्मा को वर्णन करते हैं कि अद्भुत है. Some hear of him as amazing. कुछ लोग सुनते हैं, श्रुणोति, क्या सुनते हैं? कि आत्मा अद्भुत है. और श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्. After hearing about him, even after hearing about him, many cannot understand him at all. तो उसके बारे में सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को आत्मा क्या है वो पता ही नहीं चलता. So that's why this shloka is called as amazing shloka, the amazing verse, or the amazing soul shloka. So here we come to know the soul is life's amazing and empowering secret. जो भी आत्म ज्ञान, anybody who knows the science of the soul, and his life is successful. So this is a very empowering secret that we all should know. क्यों आत्मा ज्ञान, आत्मा साक्षात्कार कराना चाहिए? Because when we know Atma, we will know Paramatma also. So amazing soul can also be considered as, it is telling three things as amazing. One is the soul is amazing, Atma adbhut hai. The people who talk about it, know about it, see it and hear about it, they are also amazing. ऐसा भी हम मान सकते हैं. तो जो सुनते हैं आत्मा के बारे में, जो कहते हैं आत्मा के बारे में, जो देखते हैं आत्मा को, वो भी अद्भुत है. और सुनना, बात करना और श्रवण करना आत्मा के बारे में, ये भी अद्भुत है. So it can be seen as, in 9 different angles it can be seen as the Ascharyavat. That's why it is called as the amazing verse of Bhagavad Gita, or the amazing soul verse. So we will move on to shloka number 30. I will come back to the purports later. We will read continuously the shlokas and then we'll come back. Tehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam shochitum arhasi. So what is Krishna trying to tell here to Arjuna? अर्जुन के लिए कृष्ण क्या बता रहे आत्मा के बारे में? कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, हे भरत वंशज, he who dwells in the body is eternal. देहि नित्यम अवध्योयम, can never be slain. उसका वध नहीं होता. आत्मा नित्य है, उसका वध नहीं होता. Therefore you need not grieve for any creature. तस्मात् सर्वाणि भूतानि, लाइक ये ऐसा हर आत्मा का यही विशेष है. तो एवरी आत्मा इज हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. न त्वं शोचितुम अर्हसि, देयरफॉर यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी क्रिएचर. आपको कोई आत्मा के लिए शोक व्यक्त करने की जरूरत नहीं है. सो यस्टरडे वी डेल्ट विद दिस श्लोका दैट स्पिरिचुअल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स होपलेसनेस or an hopeless hand to an endless hope. We had already discussed this कि जब हम मायूस हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें सही रास्ता दिखाने में आध्यात्मिक ज्ञान हमारा सहायता करता है. So we will move on to shloka number 31. We will come back to the purports. So now we are moving into a different zone. तो एक दूसरे क्या बोलते हैं, लाइट, एक दूसरे प्रकाश की तरफ हम जा रहे हैं.
अभी तक श्लोका नंबर 11 to श्लोका नंबर 30. What happened? It mainly talked about jnana. Krishna is mainly talking about jnana. He's talking about आत्म तत्व योगा. आत्म तत्व योगा के बारे में बात कर रहे हैं. सांख्य योगा के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन. ऐसे अर्जुन को कृष्ण पाठ पढ़ा रहे हैं. It also helped us know our identity. तो हम क्या है, who are we, ये जानने में मदद किया श्लोका नंबर 11 to श्लोका नंबर 30, क्योंकि आत्मा के बारे में बात हो रहा था. So basically an analytical study was going on. Now what is happening? So the first तो तीसरे श्लोक तक क्या हो रहा था? फर्स्ट लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अर्जुना 5 रीजंस बता चुके हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं. तो उनमें से पहला कारण था, द फर्स्ट रीजन वाज कंपैशन, दया. तो कृष्णा हैज प्रूव्ड दैट आप अपना दया सही तरीके से नहीं दिखा रहे, सही चीज के लिए नहीं दिखा रहे. आप कपड़े के लिए दया कर रहे हैं, जो कपड़े के अंदर है उसके लिए आप दया कीजिए. डोंट शो कंपैशन फॉर द क्लॉथ्स, शो कंपैशन फॉर द पर्सन हु इज wearing the cloth, which is atma, and cloth is the body. शरीर को वासांशी, मतलब शरीर को कपड़े का दर्जा दिया गया है इस श्लोका में. So in the next slokas, sloka number 31 to 38, what Krishna is going to now refute is basically now from jumping from the introduction to Atma Tattva Yoga, is coming to application of Atma Tattva Yoga. तो जानकारी तो मिल गया, ज्ञान मिल गया, we got knowledge. What do we do with this knowledge? We apply that knowledge. हम उस ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे उसको यूज करना है. So it is basically Krishna is talking about कर्म कांडा. मतलब जहां पे हमें this portion of the Vedas teaches us how to lead a pious life, and therefore what is it talking about? Swadharma. So what is it? From shloka number 31 to 37, Krishna refutes Arjuna's second reason of argument called as loss of enjoyment. वो बोल रहा है कि हम कैसे आनंद में रह सकते हैं हमारे लोगों को मार के. कृष्णा इज टेलिंग ये आप धर्म फॉलो करके ही आपको आनंद मिलेगा. सो विल मूव ऑन टू श्लोक नंबर 31. स्वधर्मम अपि चावेक्ष, लाइक आई सेड, स्वधर्मा इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते. So Krishna is telling here, considering your specific duty as a क्षत्रिय, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपका स्वधर्म क्या है, आपका occupational duty क्या है, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principle. धर्मादि युद्धात् श्रेयो अन्यात्, इससे श्रेयस्कर काम और कोई है ही नहीं. क्षत्रिय के लिए तो धर्म के लिए वो अगर युद्ध खड़ेगा, उस पे वो मर भी गया तो भी उसमें उसका उद्धार ही होगा. That's what he is trying to tell in this shloka, and is telling, so there is no need for hesitation. न विकंपितुम अर्हसि. तो आपको सोचने के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं. So this is what Krishna is telling Arjuna. See very carefully when we see Arjuna in the previous sloka 1.29, he has told वेपतुश्च शरीरे में, मतलब मेरा देह में कंपन हो रहा है. And so what is Krishna telling here? Na vikampitum. There is no need to be like that. There is no need to have trembling of your body. There is no need to hesitate. आपको हिचकिचाना है ही नहीं. ये आपका स्वधर्म है. इसमें क्या सोच रहे हो आप? इसमें क्यों आप इतना मतलब अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? ये तो आपका धर्म है, ये तो आपका काम है. We'll move on to shloka number 32 and then we'll go back to the purports.
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. So yadruchaya cha upapannam. उपपन्नम मतलब अराइव्ड एट. यदृच्छया अपने आप आ गया. क्या आ गया? युद्धम ईदृशम, लबंत युद्धम ईदृशम. व्हाट इज दैट? वो पार्था, हे पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियास, वो क्षत्रिय सुखी है. टू होम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम अनसॉट, जो बिन मांगे ऐसे धर्म युद्ध का अवकाश जिस क्षत्रिय को मिलता है, वो सबसे आनंदकारी चीज है एक क्षत्रिय के लिए. यदृच्छया च उपपन्नम, तो उससे क्या होगा? ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स. स्वर्ग द्वारम अपावृतम, आवृतम टू क्लोज, अपावृतम टू ओपन. क्या ओपन हो रहा है? स्वर्ग द्वारम. सो द स्वर्ग द्वार इज ओपनिंग फॉर अ क्षत्रिय who is fighting a religious war or a righteous war, standing in the side of the righteousness. तो धर्म के अनुसार, धर्म के पक्ष में जब क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, तो उसको स्वर्ग का द्वार अपने आप खुल जाएगा. So we will go back to the purports of this shloka. So Gita Upanishad is largely based on the principles of Upanishad. गीता एक उपनिषद में गणन करा जाता है, और उसमें जो भी प्रिंसिपल्स तत्व डिस्कस हो रहा है, वो सब उपनिषदिक तत्व है. जो सारे उपनिषद में जो तत्व दिया गया है, वो तत्व गीता उपनिषद में मिल जाएगा. सो कटा उपनिषद में कहा गया है, श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्या, शृण्वतोपि बहवो या न विद्यु, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः. सो यहाँ कठा उपनिषद क्या बोल रहा है? सो बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक सोल इज विद इन द बॉडी ऑफ अ जाइगेंटिक एनिमल. आत्मा जो बहुत ही सूक्ष्म है, वो एक बृहद आकार प्राणी में भी हम पाते हैं. बृहद आकार प्राणी को भी वो चला रहा है. इन द बॉडी ऑफ ए जाइगेंटिक बैनियन ट्री, एक बड़ा वट वृक्ष, उसमें भी एक छोटा सा आत्मा उसका नियंत्रण कर रहा है. उसके वजह से वो जीवित है. इट इज अलाइव बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल पोर्शन और ए स्मॉल पार्ट कॉल्ड आत्मा. एंड ऑल्सो इन द माइक्रोबियल जर्म्स, आत्मा हर कीटाणु में भी है. जरा सोचिए, 1 inch space of 1 inch of space, billions of microbes are there. तो 1 इंच में अरबों कीटाणु इकट्ठा हुए हैं, और हर कीटाणु के अंदर एक आत्मा है. सो एक कीटाणु के अंदर भी आत्मा है. एक बृहदाकार हाथी या ब्लू व्हेल उसमें, या फिर डायनासोर अगर वो होता, तो उसके अंदर भी आत्मा है. सो इट्स सच एन अमेजिंग थिंग. ये अद्भुत कार्य विषय है, आश्चर्यवत. सो इट्स सर्टेनली वेरी अमेजिंग. Men with poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of individual atomic spark called soul. तो लास्ट लाइन ऑफ द श्लोका was श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्. सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद, कहने के बावजूद, कुछ लोगों को आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी होता नहीं है. तो who are these people? Men with poor fund of knowledge, जिसके ज्ञान क्षीण है, वो आत्मा के बारे में जान नहीं सकते. दूसरे कौन है? Men who are not austere, जो अपने ऊपर संयम नहीं रख सकते, जो तपस्या नहीं कर सकते, जो त्याग नहीं कर सकते. त्याग मतलब भगवत प्राप्ति के ओर जो त्याग चाहिए, वो त्याग के बारे में हम बात करेंगे. टॉकिंग ऑफ दो सैक्रिफाइसेस व्हिच टेक्स अस टुवर्ड्स गॉड. सो पीपल हु कैन नॉट डू दैट, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द सोल. तो आत्मा विज्ञान के बारे में ये दो तरह के लोगों को कभी प्रकाश नहीं होगा. सो मेन लुक एट द सोल from
प्रॉपर इज वंडरफुल आइदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय डिस्क्रिप्शन, या तो देखते हैं या सुनते हैं, उसके बाद कोई उसको अद्भुत बोलते हैं. Illusion by material energy, people are so engrossed in subject matter or sense gratification that they have very little time to understand the question of self-understanding. तो बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, सुनते हैं लेकिन उसके बारे में सोचने का कोई समय नहीं है उनके पास. तो जिंदगी के भाग दौड़ में सब बिजी है. They don't have time to even reflect on what they are doing. क्यों वो कर रहे हैं सब, आखिर में उनको क्या चाहिए. So without this self-understanding, all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. तो ये आत्मज्ञान जो नहीं पाता है तो उसके जिंदगी का भाग दौड़ अल्टीमेटली इट इज अ डिफीट, मतलब वो हार ही जाते हैं जिंदगी से. So it is difficult to find a man who has actually derived full benefit from the knowledge of the soul. तो who is that man? Difficult to find a man. किस man की बात हम कर रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आत्मज्ञान के बारे में जानता है, और वो दुर्लभ है. We are talking of the guru. तो गुरु को पाना मामूली सा बात नहीं है. But our Prabhupada is so merciful that he went all around the world, established so many temples. He traveled at a ripe old age. वृद्धावस्था में वो भ्रमण कर रहे थे पूरे विश्व का. 11 साल में 14 बार विश्व का भ्रमण किया. क्यों कर रहे थे? ताकि वो लोगों को मिल सके, लोगों को भगवत ज्ञान, आत्मज्ञान दे सके. So he used to go and meet people. He used to go and open temples for the benefit of all of us. तो यदि प्रभुपाद जी नहीं होते, हम सबका क्या होता, जरा आप सोचिए. So, but if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. जैसे तैसे भी आत्मा के बारे में हम ज्ञान पाते हैं, पा लेते हैं. When somehow if we get the knowledge of Atma, then our life is successful. So Prabhupada has provided that facility for us. The easiest process for understanding the subject matter of self, please listen to this carefully. बहुत गंभीरता से इस बात को सुनिए. The easiest process for understanding the subject matter of the self is to accept the statements of Bhagavad Gita. अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए, केवल भगवत गीता पढ़ने से आपको आत्मज्ञान प्रकाश हो जाएगा. Bhagavad Gita written by a bona fide guru, that is someone like Srila Prabhupada. In our case, Srila Prabhupada only. But it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in previous life, before one is able to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. तो या तो घोर तपस्या किया होगा कोई पिछले जन्म में, या कुछ ऐसे त्याग हमने किया होगा, दान किया होगा, जिसके वजह से आज हमें कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिल रहा है. बट ज्यादातर लोगों के लिए, फॉर मी एंड मेनी अदर पीपल, Krishna can however be known as such by causeless mercy of the pure devotee and by no other way. तो बहुतेक लोगों को केवल गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के कृपा से उनको भगवत ज्ञान के बारे में आसक्ति आता है और उसके बारे में वो ज्ञान पाते हैं. So this is what Prabhupada did for mankind. He went distributing his causeless mercy. अपने हेतु रहित दया को वो हर जगह मुक्त रूप से वो बांट रहे थे, और उनके शिष्य को बोल रहे थे पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो. Today I sent a short video to all of you. What did we hear in that video? That one devotee asked Prabhupada, see, is it necessary to take Diksha to get the blessings of the Guru and go back to Godhead? Because we are distributing books to so many people, they have not taken Diksha from you. So what will happen from them? For them? Okay, जो आपके पुस्तक पढ़ रहे हैं लेकिन आपसे दीक्षा नहीं लिया उन्होंने, तो उनको मतलब उनका क्या होगा? प्रभुपाद जी 1 मिनट सोचने लगे, फिर उन्होंने आंख खोला, उस डिवोटी को देखा उन्होंने. He saw the devotee and he said, yes, they will also go back to Godhead simply by reading my book. Because जो मेरे बुक पढ़ते हैं
मैंने उनको दीक्षा दे दिया है. So anybody who reads Prabhupada's book, Prabhupada has already given them दीक्षा. तो फिर हमें दीक्षा क्यों लेना चाहिए? We are only formalizing it. तो हम उसको एक फॉर्मल ग्रेजुएशन सेरेमनी की तरह हम इनिशिएशन दीक्षा हमें लेना चाहिए. इट इज इम्पॉर्टेंट, वो जरूरी है. सो Prabhupada is talking about Swadharma in this particular sloka, and especially in the Ashtarvacha sloka, Prabhupada is talking about Atma Sakshatkar. मतलब क्या है? मतलब we have to follow our Swadharma, we have to follow the Guru's instruction, then we will be able to get the knowledge of the soul. So we'll move on, sloka number 30. So in this purport, Prabhupada is telling, Lord Krishna establishes the soul is immortal and body is temporary. तो यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहे हैं कि आत्मा नित्य है, देह असत है, मिट जाएगा एक दिन, टेम्पररी है. तो आप इसके लिए क्यों शोक मना रहे हो, क्यों दया दिखा रहे हो देह के लिए? आपको आत्मा के लिए दया दिखाना चाहिए. So Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher will die in the battle. क्यों आप इतना सोच में पड़ गए कि आपके नाना जी और दादाजी और आपके गुरु मारे जाएंगे? क्या मिट जाएगा? उनका देह मिट जाएगा. उनका आत्मा तो अमर है, उनका आत्मा तो नित्य है. आप आत्मा को मार ही नहीं पाएंगे. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is soul which is different from the material body. तो कृष्ण का संदेश से हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि आत्मा नित्य है और देह अनित्य है. और वायलेंस इज नॉट एनकरेज्ड. तो कभी भी वायलेंस कैनॉट बी द फर्स्ट आंसर फॉर एनीथिंग. ऑलवेज इट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट. अब और कुछ नहीं हो सकता है तो बल, मतलब वो भी अधिकृत आदमी, that means authorized person like a policeman, a soldier, he can do this, not everybody. घर के एक जो what we can say head of the family, he can use bal prayog when everything else fails because he is authorized to do it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord. वो धर्म अनुसार होना चाहिए, भगवत गीता में जैसे दिया गया है उसके अनुसार होना चाहिए. Moving on to sloka number 31. Purport of that, we did this sloka. तो क्षत्रिय का मतलब क्या है? What is the meaning of क्षत्रिय? क्षत मतलब to hurt. क्षत means to hurt, और क्षत means hurt, मतलब घाव हो जाना. और त्रय मतलब, त्रायते मतलब to give protection. So क्षत्रिय का मतलब क्या हो गया? What is the meaning of क्षत्रिय? One who gives protection from hurt. मतलब हमें कोई भी तकलीफ ना हो, ये जो मतलब प्रोविजन देगा वो क्षत्रिय है. One who gives protection from harm is called kshatriya. The Kshatriyas are specifically trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. जब शांति का मार्ग बंद हो जाता है तो तर्क का मार्ग, डायलॉग का मार्ग से सुलझाना चाहिए. जब डायलॉग का मार्ग बंद हो जाता है तब हिंसा का प्रयोग अधिकृत लोगों को करने के लिए अनुमति है. So only authorized persons can do it. So on our behalf the soldiers can fight a war. On our behalf the policeman can take charge and bring things under control. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it's never a factor or principle. So ahimsa is not necessarily the only way to deal with things, and himsa is also not the first way to deal with things. तो पहले अहिंसा ही से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हिंसा का प्रयोग अधिकृत लोग कर सकते हैं. So killing on the battlefield on religious principle and killing of animals in sacrificial fire are not at all considered to be acts of violence because everyone is benefited. जब एनिमल सैक्रिफाइस होते थे, वैदिक जब युग था, तब जो सैक्रिफाइस हो रहा है उस एनिमल का भी बेनिफिट हो रहा था. तो those animals would also get benefited. What benefit?
they would immediately get a human body after the sacrifice. Varna unko of 84 lakh species, there are so many animals body, they have to go through that, then they will finally come to some human body after many millions of births. But इस sacrifice में वो भाग लिए, उनको sacrifice किया गया, तो उनको तुरंत मानव देह मिल गया. But that is only possible by people who are experts in chanting certain mantras. आजकल के ब्राह्मणों के बस की बात नहीं है. So आजकल ये सब animal sacrifice and all is not to be done at all. पिछले जमाने में ऐसे मंत्र का उच्चारण करते थे कि वो अग्नि में डालते ही वो देह मिट जाता और एक मानव का देह उनको तुरंत मिल जाता. This was the power that the mantras had. But in today's circumstances, it's not possible, and therefore it is never recommended. So Kshatriyas killed in the battlefield also attain heavenly planets. तो जो भी क्षत्रिय युद्ध भूमि में धर्म के पक्ष में लड़ते हुए त्याग कर देगा अपने देह को, उसको स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा. And brahmanas who attain them by offering sacrifice. ब्राह्मण यजन याजन पठन पाठन करके वो भी स्वर्ग का द्वार पहुंच सकता है. So there are two kinds of swadharmas. दो तरह का स्वधर्म है. एक भौतिक स्वधर्म, that is वर्णाश्रम धर्म, that is a social distinction, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और एक पर्सनल डिविजन, that is ब्रह्मचारी गृहस्था वानप्रस्था and sannyasa. So these two types of divisions are there for regulated living in material world. Then there is spiritual swadharma, constitutional position. We already discussed this. हमारे आध्यात्मिक जो नित्य स्थान क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास. तो कृष्ण दास जो हम हैं वो हमारा नित्य स्वधर्म है. तो वर्णाश्रम धर्म से धीरे धीरे हमें नित्य धर्म मतलब हम कृष्ण दास बनने की ओर हमें जाना चाहिए. So this is what is being told in shloka number 31. So we will stop here. I just wanted to deal with one thing. What happens when we get knowledge of Bhagavad Gita? So we can clearly understand 5 fundamental things. Bhagavad Gita का ज्ञान से हम 5 चीजों के बारे में हम जान सकते हैं. ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म. ये 5 चीजों, these are the 5 basic truths. इसके बारे में हम जानकारी पाएंगे तो हम we know everything. सब कुछ हम जान पाएंगे. So this is what is the advantage of studying Bhagavad Gita. So please continue to join me whenever I indicate to you through links. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare